Hi everybody, this is Pranita Dash. I have secured All India rank 42 in this year's UPSC Civil Services examination. This is the first time I'm going live, so I hope I'm audible to everybody. So what we are going to do here is first I'll address the frequently asked questions by the UPSC aspirants, and then you can ask me your doubts over comments and I'll try to answer all your queries there itself. So चलिए हम शुरू करते हैं. First of all, a brief introduction. My name is Pranita Dash. I'm born and brought up in Odisha, in a small town of Baripada, but then I moved to Bhubaneswar for my schooling. Then I did my graduation in economics from St. Xavier's College, Calcutta. उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मेरा मास्टर्स करने का मौका मिला, तो एक साल मैंने वहाँ बिताया है. अ, वहाँ से लौटते ही मैंने शुरू कर दिया अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन. लास्ट ईयर 2022 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गई. वहाँ पे मेरा एमफिल इन इकोनॉमिक रिसर्च अभी कोर्स चल रहा है, जो कि जुलाई में ख़त्म हो जाएगा. First things first, this was my third attempt at the examination. In the initial two attempts, I had not managed to clear the preliminary stage. So the third time proved to be lucky for me and I got All India rank 42. First of all, thank you everybody. आपने मुझे Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp बहुत सारे messages किए, बहुत सारे wishes दिए. I hope I am able to do good work as a responsible civil servant and make all of you proud. Now coming to all the messages of aspirants, आपने बहुत questions पूछे कि क्या था मेरा strategy, कैसे मैंने मेंस क्लियर किया, कैसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए. तो मैं आपको पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि there is no set standard, there is no set strategy that will help you sail through the examination. आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से ही आपका स्ट्रेटजी आपको डिवाइस करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट एवरी एस्पिरेंट हैज़ टू डू मैंडेटरीली, और वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया है, रादर देन कि कोई एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी एट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. सो मेरा यूपीएससी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैंने एक्चुअली जब पहला अटैम्प्ट दिया था तब मेरा बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड अटैम्प्ट था. मैं ऐसे ही चली गई थी एग्जामिनेशन टू सी जस्ट कि कैसे क्वेश्चंस आता है, if I'm able to solve even a few of the questions. So I had not studied for the examination. It was just a trial attempt. But at the hindsight, I believe that nobody should ever do that. In fact, आपका first या second attempt should be your best attempts. और अगर आप subsequent attempts दे रहे हो, you should always focus on improving upon the previous attempt. तो मेरा वो 2020 वाला attempt was totally unprepared. However, 2021 में I made a very prepared attempt at the examination, but then I missed prelims by less than 2 marks. So I was totally devastated. फिर मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर मी. ये शायद बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग क्लियर कर पाते हैं और शायद मैं उनमें से नहीं हूँ. But that is when the family, the mentors, they stood by me. My friends, they told me that no, you'll be able to do it. और फेलियर के बाद गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन. यू शुड इम्प्रूव अपॉन योर प्रीवियस अटैम्प्ट, और फिर आपका जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो आप बहुत ही बेटर वे में आप दे सकते हो. सो मैं बोलूँगी कि अगर ऐसे कोई एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं जो बार बार फेलियर्स का सामना कर चुके हैं, मैं बोलूँगी कि डू नॉट गिव अप. अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया तो आप सब भी कर सकते हैं. आई वॉज नेवर समवन हु वॉज लाइक द टॉपर थ्रू आउट स्कूल, पर आई वॉज़ अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट. तो आप अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हो, अगर आप
को हार्ड वर्क करने में कोई झिझक नहीं है, then this exam is definitely for you. And sooner or later you will definitely clear this examination. Just have enough confidence in your abilities and keep going. Perseverance ही आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा आपको सक्सेस दिला पाएगा. अब मैं आपको अभी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. पहले कमिंग टू द बुक लिस्ट्स. तो बुक लिस्ट वही है जो सबका होता है. जैसे कि द यूजुअल बुक्स, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया. एंशियंट मिडिवल के लिए मैंने रेफ़र किया था जो न्यू एनसीईआरटीज़ है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडिया के लिए वो स्पेक्ट्रम का वो बुक वाज इनफ फॉर मी. एंड इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई सेपरेट बुक नहीं पढ़ा था. सो दिस वाज जस्ट द नॉर्मल जो मैंने ऑप्शनल में पढ़ा था उसी को ही मैंने ब्रशअप किया. बट हाउएवर इफ़ यू डोंट हैव इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और आप जीएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आई हैव हर्ड कि श्री राम का जो ब्लैक बुक आता है दैट इज़ क्वाइट इंफॉर्मेटिव, तो आप वो देख लीजिए. एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो like focus on the very important topics like inflation, monetary policy, fiscal policy. वहाँ से questions बनते ही बनते हैं. और आप इकोनॉमिक्स के जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑलवेज लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. वहाँ पे यू विल गेट ए हैंग ऑफ हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी. जैसे कि स्टेटमेंट्स हैविंग द वर्ड कंसिस्टेंटली, दे आर बाउंड टू बी रॉन्ग. एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है कि दिस पॉलिसी ऑलवेज रिजल्ट्स इन दिस, तो दैट डेफिनेटली इज़ रॉन्ग. तो वैसे ही आप पढ़ाई भी कीजिए कि आप पहले पास्ट ईयर्स देखिए और फिर आप समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्ज़ाम्स में. तो आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रिपरेशन विथ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. इकोनॉमी गया. फिर हम एनवायरनमेंट के लिए अगेन द सेम बुक दैट एवरी एस्पिरेंट यूजेस, द शंकर आईएएस बुक. साइंस एंड टेक जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, इन सब के लिए मैंने बस करंट अफेयर्स ही फॉलो किया था. और करंट अफेयर्स में आपका हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं और एट द सेम टाइम जो भी आपका मंथली मैगज़ीन्स है वो मैंने फॉलो किया था. कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए और उसको एंड ऑफ द मंथ में पढ़िए और फिर बार बार उनको रिवाइज कीजिए ऑल द इन योर माइंड. So what you can do is you have to consistently revise those current affairs so that it kind of gets ingrained in your memory. और मैंने क्या किया था कि डेली करंट अफेयर्स जो भी साइट्स में आते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो लोग डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं. तो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल, बट न्यूज़पेपर से जो टॉपिक आपका छूट गया है, आप क्या कर सकते हैं कि आप वो डेली करंट अफेयर्स वो ब्लॉग, वो वेबसाइट पे जाइए और फिर आप देख लीजिए कि क्या आपने मिस किया है. एंड एट द सेम टाइम वो लोग डेली क्विज़ेस भी निकालते हैं करंट अफेयर्स के. तो आप एक काम कीजिए कि हर दिन वो 5 या 10 क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व. सो दैट पुट्स यू इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं कि कहाँ आपका क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहा है. अगर आप 10 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस गलत करें तो आप थोड़ा एनालाइज कीजिए कि कहाँ मेरी गलती हो रही है. मैं क्वेश्चन तो नहीं गलत पढ़ रहा हूँ, या मैंने शायद अपने जो भी पढ़ा था उसको शायद अच्छे से मेमोराइज़ नहीं किया. तो ये सब आप थोड़े देखिए, एनालाइज कीजिए कि क्या आपका गलत गया है. एंड एट द सेम टाइम जब आप नेक्स्ट डे वो क्विज़ेस करेंगे तो मेक श्योर कि आप ये गलतियाँ रेक्टिफाई करने की कोशिश करें. So that puts you in the habit of taking exams, taking like solving a lot of questions, and that will definitely help you in making intelligent guesses or eliminating options during the prelims examination. So what I realized was कि
जैसे जब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दिया था, तो मेजॉरिटी ऑफ माय फोकस इट वेंट इनटू द करंट अफेयर्स, क्योंकि इतना बल्कि होता है तो आपको लगता है कि ये इसी पे ही फोकस ज़्यादा डालना पड़ता है, और हम स्टैटिक को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, और स्टैटिक हम सब्सिक्वेंट रिविजन्स शायद नहीं कर पाते हैं. But after not being able to clear the preliminary stage in the first two attempts, I realized that अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़े, अगर आपने बेसिक बुक्स बहुत बार कवर किए हैं, तो एटलीस्ट 35 questions you will be able to solve in the examination. एटलीस्ट 30 to 35 questions आप समझ जाएंगे कि जो मैं अटैम्प्ट ले रहा हूँ वो सही ले रही हूँ. पर जो बाकी के क्वेश्चंस है, यू हैव टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू इंक्रीज योर लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए ये सब जो आपने प्रैक्टिस किया होगा थ्रू टेस्ट सीरीज़ हो, या आपने जो ये डेली करंट अफेयर्स किया होगा, या जो भी आपका अवेयरनेस होगा, आप वो सब यूज़ करके एलिमिनेशन टेक्निक्स पे काम कीजिए, इंटेलिजेंट गेस वर्क टेक्निक पे आप काम कीजिए. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फेच अनदर 30-40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स में द कैच इज़ कि यू डोंट रियली हैव टू like score 200 out of 200 in the examination. Your goal is to score somewhere between 95 to 110, and that will definitely help you sail through prelims. So आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, आप सबसे बेस्ट आपके अटेम्प्ट्स मेक कीजिए. एंड मेरा वो है कि आप 80% ऑफ द टाइम जो भी आप प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को दे रहे हैं, फॉर जैसे मैंने टॉपर्स का देखा था, उन्होंने बोला है कि आप 3 months बिफोर प्रीलिम्स आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. पर मैंने, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डॉन्टिंग पार्ट, what I used to do was I started preparation for prelims about 4.5 months before the actual examination, because I felt कि that suited well to my strengths and weaknesses. So you can also plan your strategy accordingly. और उसी टाइम पे what I used to do was 80% of the time I used to devote to the static affairs, and 20% of the time I devoted to current affairs as well as the newspapers. And every like 4 to 5 days I was taking a test. इधर आप वो 50 क्वेश्चंस वाला कर सकते हैं, या पूरा पूरा टेस्ट्स भी दीजिए, लेकिन आप वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में दीजिए. कि आप प्रीलिम्स का अगर टेस्ट दे रहे हैं तो 2 hours में यू हैव टू लाइक सॉल्व द एंटायर पेपर. if you are taking more than 2 hours or you are solving it in like 1 hour, then that doesn't necessarily reflect the kind of atmosphere you will be facing in the actual examination. So try testing yourself in an exam environment, and that will definitely help you in the examination. Just give me a second. Yeah, so this was all for prelims. बट प्रीलिम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. आई वुड से कि एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विथ फुल कॉन्फिडेंस. just remember that you have studied enough, have confidence in your preparation, have belief in your abilities, and enter the examination like you are here to crack it. I know it sounds easy and it's very difficult to practice, बट आप अगर वो एटीट्यूड लेके जाएंगे तो आपका डाउट्स वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस विल बी लेसर, एंड आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट्स दे सकते हैं विद द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. उसके बाद मैं एक चीज़ बोलूँगी कि डोंट कैरी द बैगेज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन टू द नेक्स्ट. आप एक क्वेश्चन को एट वन टाइम ही टैकल करना चालू कीजिए. जैसे what I used to do in the previous attempts was, because I have not solved maybe the 10th question, then I would start thinking that oh shit, I have not been able to solve question number 10.
my marks will be decreased by these many numbers. I might not be able to crack. So I was carrying the baggage of one question onto the next, and that definitely had an impact on my mental sanity during the examination. And everything used to get clouded in my mind, and I knew I could not appear for the examination in my best state of mind. So वो आप मत कीजिए. आप देखिए कि 100 क्वेश्चंस हैं और आपको 100 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. आपने जितना अपना अटेम्प्ट सोचा है कि मैं 75 से 85 करूँगी, तो उस हिसाब से कीजिए. अगर एक नहीं आ रहा है तो यू स्टिल हैव 99 क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व. वैसे आप करते जाइए. आई अंडरस्टैंड दैट दिस ईयर्स prelims were tough, and most of it could also be attributed to the difficulty of CSAT. So CSAT के लिए मैं बोलूँगी कि पहले आई थिंक जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स के सारे CSAT पेपर्स सॉल्व कर लिए थे. तो आई अंडरस्टूड कि ओके, दिस इज़ अ पेपर दैट आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट, because I was consistently getting above 95 in all the test papers as well as the previous year papers, so I did not have to worry about it. But given the difficulty level of CSAT in this year, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक एप्टीट्यूड वाला बुक उठाइए, कोई भी मैथ वाला बुक उठाइए, और एवरी संडे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. टॉपिक वाइज प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की सॉल्व कीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की कीजिए. आप स्टडी कीजिए पैटर्न, और फिर उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि दिस ईयर्स पेपर हैज़ बीन टफ एंड वी नेवर नो कि यूपीएससी इस पैटर्न को फॉलो करेगा या नहीं. सो या दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट फॉर CSAT. और CSAT में ये है कि आप ये मत सोच के जाइए कि मैं मैथ्स पहले अटैम्प्ट कर लूँगी, कॉम्प्रिहेंशन बाद में अटैम्प्ट कर लूँगी, या कॉम्प्रिहेंशन बाद में अटैम्प्ट कर लूँगी, मैथ्स पहले कर देती हूँ. तो ये सब आप इतना सेट स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रैटेजी लेके मत जाइए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज़ कि वो डिफ़र करता है. आज इस बार अगर CSAT हैज़ बीन टफ, तो इस बार अगर मैथ्स हैज़ बीन टफ, तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही टफ़ आ जाए. तो वैसे आप करके मत जाइए. अगर आप क्वेश्चन वाइज जाएंगे, जैसे मैं क्वेश्चन वाइज जाती थी, अगर 1 में कॉम्प्रिहेंशन है, 2 में मैथ्स है, तो मैं क्वेश्चन वाइज ही जाती थी. जो मुझे नहीं आता था वो मैं उसको मार्क कर देती थी, ये बाकी लास्ट में आके आई विल रिव्यू दैट क्वेश्चन. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज in 2021, 2021 maths was easier and comprehension was I think difficult, and last year maths was tough and comprehension was easier. तो अगर तो many aspirants what they did was, because they knew maths is going to come easier, so they started with maths question, but apparently that year maths was difficult. So by the time they went to comprehension, they had less time to solve the reading comprehension questions. So don't go with that state of mind कि इतना कि ऐसे ऐसे करना है, इतना इतना करना है. Look at the paper and then decide कि क्या मुझे करना है. सेम विद द GS पेपर, डोंट गो विद स्ट्रैटेजी कि 92 क्वेश्चंस मतलब 92 ही करने हैं. आई नो समवन जिन्होंने बस 78 क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे सॉल्व, एंड ही कुड लाइक गेट थ्रू प्रीलिम्स विद अ वेरी गुड स्कोर. सो वैसे भी आप कर सकते हैं कि ज़्यादा दिमाग में आप क्योंकि व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर मैं 78 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ इन द प्रीलिम्स, आई विल ऑलवेज थिंक कि मुझे तो 90 करने थे, अब मेरे से नहीं होगा. तो जो मैं 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी, उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी वो शायद मेरी गलत हो जाए. सो वो वैसे हिसाब से मत कीजिए. आप 78 क्वेश्चंस में आप अगर देख रहे हैं कि अबव 100 या 95 जा रहा है, तो स्टॉप, आई वुड से. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर प्रीलिम्स. उसके बाद मेंस. सो
I can see a lot of questions. I'm so sorry. I was just going on. Yeah, let me just take up a few questions. CSAT definitely I think clear हो जाना चाहिए. Uh, what? I'm sorry, I didn't understand your question. पर अगर आपका CSAT पे 76 to 78 आ रहा है, you should be able to clear it. क्योंकि आप 66 is the cut off. तो अगर आपका GS भी above I think 85 आ रहा है, you should definitely start preparing for mains, I would say. So yeah. Oh, I think you wanted to ask me about my distraction, social media distraction. I mean, अच्छा GS में 76 to 78 है. 76 to 78 अब देखिए इस बार बोल रहे हैं लोग कि द कट ऑफ कैन गो लिटिल बिट लोअर. सो एंड आंसर कीज भी इतने रिलायबल नहीं है. सो जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स आई वुड से. ओके आपका फिर हो. लेट्स सी. मैं श्योर नहीं हूँ. आई वोंट बी एबल टू से दैट लाइक वेरी श्योरली, but yeah, I think you should wait for the results. Those are going to come I think next week. So reading comprehension कैसे deal करें? What I would say is कि I am getting so many comments right now. अच्छा, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ऐसे डील कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बहुत सारे सॉल्व कर लीजिए. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द वे यूपीएससी इज़ आस्किंग क्वेश्चंस. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आप थोड़ी जीएस के स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी यू विल गेट सम क्वेश्चंस, गेट सम ऑप्शंस जहाँ पे वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं एंड यू विल नो कि वो तो गलत होने ही है. सो फाइनली यू विल हैव टू चूज़ बिटवीन 2-3 प्रॉपर ऑप्शंस. तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व. बट अगर बिल्कुल आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन गो थ्रू एनी बुक, एनी गुड लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बुक, और मे बी यू विल बी एबल टू लाइक प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि ऐसे सॉल्व करने हैं. आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आई एम कमिंग टू दोज. आई हैव नॉट स्टार्टेड मेंस का. या जस्ट गिव मी 2 seconds. So addressing the question for this one, social media distraction. I am a social media person. So I was quite active on this one, Instagram and YouTube पे भी मैं काफ़ी वीडियोस देखती थी. तो मैं मैं क्या की थी कि एक लिमिट रख लेती थी कि एक दिन में 1 घंटा ही देखना है, या 2 आवर्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू स्टडी डे एंड नाइट. तो आपको थोड़े बहुत ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो या कुछ एंटरटेनमेंट के वीडियोस हो. जैसे आई लव म्यूज़िक, तो मैं बहुत गाने सुनती थी. तो या आई वॉज क्वाइट एक्टिव. You are in class 8 and you want to prepare. I would say that अभी आप you should focus more on like school studies, क्योंकि आप UPSC के टाइम पे you will realize while preparing कि आपने अगर स्कूल के बुक्स अच्छे से पढ़े हैं, अगर आप NCERT अच्छे से पढ़े हैं, तो that will also help you in your UPSC preparation. तो अभी से आप time I don't understand, but so yeah, तो आप अभी से स्कूल के एग्ज़ाम्स पे फोकस कीजिए. बाद में यू कैन सी कि आपको क्या करना है. आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद यू विल बी एबल टू मेक अ डिटेल्ड अटेम्प्ट. ठीक है, तो मैं आपको मेंस का स्ट्रेटजी बताती हूँ. हाँ, तो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट्स आने तक व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप बिल्कुल फोकस कीजिए
कि एथिक्स और आपके ऑप्शनल्स आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज आपका इतना रिजल्ट्स का एंजाइटी होता है, यू विल नॉट बी एबल टू लाइक गिव योर होल हार्ट टू द प्रिपरेशन फॉर जीएस। तो मैंने भी वही किया था कि मैंने रिजल्ट्स तक एथिक्स ऑप्शनल वो सब अच्छे से पढ़ा था, बिकॉज एथिक्स was वन पेपर आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अर्लियर। तो फिर रिजल्ट्स के बाद व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक एक फेज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ऐसे का प्रिपरेशन आई विल कम टू लेटर, आई विल स्टार्ट विथ जनरल स्टडीज़ 1। सो जनरल स्टडीज़ में you have your like topics are mostly art and culture, history or geography and society. So I'll go through one by one. For art and culture, I focused on that book by Nitin Singhania. आपको उसमें से हर टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बट मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइक द दिस वन टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, कभी कभी म्यूज़िक डांसेस से भी आ जाते हैं, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, सपोज लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर इज़ इन न्यूज़, जैसे when I was preparing, Lingaraj temple was in news. It was getting a facelift. तो कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो आप क्या कीजिए, पूरा जो शीट है आपका जो आंसर राइटिंग का, उसमें से एक साइड में आप बॉक्स बना के यू कैन ड्रॉ द कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का वो डायग्राम, और फिर आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे मंडपा है, यहाँ पे देवड़ा है। सो वो क्या होता है कि द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स दैट यू नो दिस टॉपिक होलिस्टिकली। एट द सेम टाइम आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये भी कर सकते हैं कि जो भी पेंटिंग्स है, जैसे अगर क्वेश्चंस है ऑन वार्ली पेंटिंग, तो आप छोटा सा वो पेंटिंग दिखा दीजिए। एंड एट द सेम टाइम टेम्पल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन हो तो आपको 3-4 अच्छे अच्छे टेम्पल्स का नाम मेंशन करना ही है। सो दैट इज़ हाउ यू विल गेन मोर मार्क्स। हाँ, यस एग्जैक्टली सोनल। अगर आप कोई भी अभी टेम्पल न्यूज़ में है तो आप खाली वो टेम्पल के बारे में मत पढ़िए, वो टेम्पल में क्या आर्किटेक्चर है वो आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यू विल गेट अ क्वेश्चन कि सपोज दिस टेम्पल दिस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, और अगर आप उसका हिस्ट्री भी लिख सकते हैं कि ये किंगडम ने स्टार्ट किया था, और अगर आप उसका थोड़ा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसके कीवर्ड्स एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स। फिर हम चलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि बिकॉज यू हैव स्टडीड मॉडर्न हिस्ट्री पहले से ही प्रीलिम्स में, सो देर इज़ नो ऐसे सेपरेट प्रेपरेशन दैट यू हैव टू डू फॉर हिस्ट्री। बट व्हाट आई डिड वाज कि जो भी मेरे इंफॉर्मेशन प्रीलिम से बन गए थे, मैंने उनको बहुत बार आंसर राइटिंग में टेस्ट किया। सो आप अगर आप जा रहे हैं टू कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, तो उसका हिस्ट्री जो पोर्शंस है मैं उसको बार बार लाइक लिखती थी आंसर्स, बिकॉज आप हिस्ट्री में वो एक टाइमलाइन ज़रूर याद कर लीजिए कि ये हुआ था वो हुआ था। या इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सॉरी आई वाज एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन कि पेपर 1, 2, 3 आप सब एक्चुअली कवर करके जाइए। कमिंग बैक टू हिस्ट्री, हाँ, तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सारे पता है, बिकॉज़ प्रीलिम्स में भी सेम है। आप क्या कीजिए कि वो टाइमलाइन के हिसाब से आप वो आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए, बी इट फॉर मॉडर्न इंडिया, बी इट फॉर एंशियंट मिडियवल। जैसे एंशियंट मिडियवल में चोलाज हो गया, चेराज, पांड्याज, तो उनका आप वो याद कर लीजिए कि उनका गवर्नेंस सिस्टम कैसा था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, क्या उनका पॉटरी था, क्या फैक्ट्स, एग्जैक्टली फैक्ट्स यू हैव टू यूज़। स्टेट के हिस्ट्री इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं यूपीएससी में, बट किंगडम ज़रूर इम्पॉर्टेंट होते हैं एंशियंट मिडियवल के। स्टेट की हिस्ट्री अगर कुछ न्यूज़ में है, जैसे पाइकर रिबेलियन था हमारे टाइम पे न्यूज़ में, तो उसका क्वेश्चन ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो वैसे आप पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक स्पेक्ट्रम शुड बी इनफ।
और फैक्ट्स आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर 1857 रिवोल्ट पे क्वेश्चन है तो यू हैव टू मेंशन सम एरियाज़ जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, लक्ष्मीबाई हो गया। तो ये सब आप ज़रूर मेंशन कीजिए एग्ज़ाम पे, तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट अ गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। हिस्ट्री में आप इतना डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने की वो मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा इरेलीवेंट सा लगने लगता है। बट वॉट यू कैन डू इज़ कि आप फ्लो चार्ट्स कर लीजिए। रीजंस हो गया तो आप फ्लो चार्ट में उसको दिखा दीजिए, तो वो सब आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा, मतलब आपका प्रेजेंटेशन वो अच्छे से बढ़ा देगा। दैट इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट फॉर हिस्ट्री। Coming to geography, geography was always a very challenging part for me, but एक चीज़ मैंने समझ लिया था कि geography में आप जो prelims के लिए पढ़ते हैं वो important हो जाता है, but more important is the more important are the ones that are mentioned in your syllabus, like locational factors of industries, key resources throughout the world, वो सब बहुत important हो जाता है। उसके लिए एक कोचिंग सेंटर का मैंने बुक यूज़ किया था। उस बुक में क्या है कि आप उस बुक में आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिल जाएंगे कंटेंट। पर मैं क्या करती थी, उनके साथ मैं जो जो भी एग्जांपल्स आई कुड थिंक ऑफ, और ऑल द एग्जांपल्स दैट आई कुड टेक फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स मैं ऐड करती रहती थी। सो अगर रबर इंडस्ट्रीज़ इन न्यूज़ और सोलर पावर प्लांट्स आर इन न्यूज़, तो उसमें से मैं बिल्कुल जो भी सबसे रीसेंट हैपनिंग्स हुए हैं वो सब लेके मैं आंसर में लिखने का ज़रूर ट्राई करती थी। या आई एम कमिंग टू दैट, आप ज्योग्राफी में मैप ज़रूर यूज़ कीजिए। जैसे आई मेंशन्ड अबाउट सोलर पावर प्लांट्स, तो एक आप ये आपका शीट है, तो साइड में आप एक बॉक्स बना के इंडिया का छोटा सा सुंदर सा मैप बना दीजिए, और फिर वहाँ पे आप दिखा दीजिए कि ये जगह पे सोलर पावर प्लांट्स है। तो दैट इज़ क्वाइट लाइक हेल्पफुल। हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन था ऑन इस्थमस एंड स्ट्रेट्स, तो मुझे इतने सारे नहीं पता थे, लेकिन एक दो जो भी पता थे मैंने वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके वहाँ पे ज़रूर मार्क कर दिया था, इस्थमस और स्ट्रेट्स। सो आई थिंक दीज स्ट्रेटजीज यू कैन यूज़। जोग्राफी में ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज़ अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन है, तो आप उसका वो जोन्स बना दीजिए कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है, तो वो सब आप कर लीजिए। सिमिलरली फॉर ऑल अदर जोग्राफिकल इवेंट्स, वो सब आप ज़रूर कर लीजिए। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स, आई एम नॉट एबल टू एड्रेस, बट मैं आपको ओवरऑल एक बता देती हूँ कि जो भी आप मैप कर रहे हैं, सपोज सोलर पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी, रबर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर एनर्जी, आपको थोड़े माइंड मैप्स क्रिएट करने होंगे कि इंडिया में ये जगह पे है, वर्ल्ड में ये जगह पे है। सो अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर्स में वो सब डाल सकते हैं, मैप्स। सो so this is all I would like to say for geography. This is all what I did. इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बट ये ज़रूर किया था कि ये सारे मैप्स आप जाके टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर ड्रॉ करके आए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम पे करेंगे। अगर आप एक दो चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं एग्ज़ाम पे, सॉरी टेस्ट सीरीज़ पे, तो आप डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग द सेम थिंग्स इन द एग्ज़ाम इटसेल्फ. So try to do that, try to practice as many times as possible. Book list wise same ही है. For art and culture, Nitin Singhania. For ancient and medieval, new NCERTs. For modern India, Spectrum. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने श्रेयस कुमार सर का जो छोटे छोटे नोट्स थे वो देख लिए थे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था टू फिगर आउट वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो मैंने किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगेन मैंने
सिलेबस उठाया था और फिर सिलेबस वाइज इंटरनेट से ही नोट्स बना लिए थे 1-2 पेजेस के सारे टॉपिक्स के। सपोज़ न्यूक्लियर एनर्जी जो भी इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ वो आप 1-2 पेज में कर सकते हैं। नैक्सलिज्म, सो दीज टॉपिक्स यू कैन जस्ट फिगर आउट कैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, लैंग्वेजेस कैसे एक इशू इवॉल्व हुआ, तो वो सब आप एक एक पेज लीजिए और 1-2 पेजेस में बिल्कुल चीज़ें करने लिमिट करने का कोशिश कीजिए। Geography के लिए again 11-12 NCERTs, but for things that are not included in the NCERTs like the locational factors of industries, वो सब आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कोचिंग मटेरियल आप उठा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलॉन्ग द इंफॉर्मेशन। सी सैट का स्टडी आप हाई आप सी सैट का स्टडी क्या कर सकते हैं कि इधर यू कैन सॉल्व ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड सी कि आप कंफर्टेबल है या नहीं उन क्वेश्चंस के साथ। अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो डू द बुक्स, जो भी बुक्स आते हैं फॉर सी सैट वो आप कर सकते हैं। एवरी संडे आप कीजिए एक एक टॉपिक, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। GS2 का अगर हम बात करें पॉलिटी, तो वो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है लक्ष्मीकांत में, बट दैट इज़ जस्ट नॉट इनफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, येस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। हमारे मेंस के टाइम पे बिल्कुल आया था क्वेश्चंस ऑन द वैक्सीन्स, even I think on the gravitational waves. So those keywords you definitely have to know to be able to answer holistically. और उसके लिए आप न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स का एक मैगज़ीन उठाइए, दैट शुड बी इनफ आई वुड से। या कमिंग बैक टू पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, बट वो आपको थोड़ा आंसर राइटिंग में शायद इनफ ना हो, पर मैंने वही फॉलो किया था। पर मैंने क्या किया था कि जो भी टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन्ड है उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड किया था वहाँ पे। जैसे अगर आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसमें गोस्वामी कमेटी ने क्या रेकमेंड किया था, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में क्या बोला था। तो ये सब आप ज़रूर देख लीजिए और ये सब आप आंसर्स में इंक्लूड कीजिए। एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि ऑल्सो रिमेंबर सम जजमेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सम हाई कोर्ट जजमेंट्स। जैसे इफ द क्वेश्चन इज ऑन डेथ पेनल्टी, यू शुड बी एबल टू मेंशन about the Bachchan Singh case, the Machi Singh case, and what have been the recent judgments regarding it. Why are they appealing for humanizing the process of death penalty? So वो सब आप ज़रूर एनालिटिकली सोचिए while you are going through newspapers. And at the same time आप ऑल्सो ये फोकस कीजिए कि ये सब जो जजमेंट्स है ये आपके एक पेज में आप नोट्स में वो अच्छे से बना लीजिए। जैसे मैंने क्या किया था कि मेरे 3-4 पेजेस के नोट्स में मैंने ये सारी कमिटीज़ या सारे जजमेंट्स इनको अच्छे से लिख लिया था, लाइक सरकारिया कमेटी रिकमेंडेशंस, सेकंड ARC रिपोर्ट्स में क्या क्या है, ये सब आप एक पेज पे लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर एबल टू राइट फ्लॉलेसली इन द एग्जामिनेशन. I can remember that there was this question. Yeah, Sonal, you have to interlink current and your notes. Your notes is one thing, but if you're not really like interlinking what is going on around you, then the question makes no sense. और आप देखेंगे कि question भी आपको ऐसे ही पूछते हैं जहाँ पे you cannot solve it by just remembering the static things. तो इस बार एक क्वेश्चन था कि सम एनवायरमेंटल जजमेंट्स के बारे में लिखो। सो वो आप देखेंगे कि वो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, और अगर करंट अफेयर्स किसी ने 1 ईयर से अच्छे से फॉलो किया है तो डेफिनेटली 3-4 एनवायरमेंटल केसेस यू विल बी एबल टू राइट, बी इट सम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जजमेंट्स और बी इट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वो आपको लिख के आने ही थे। यू हैड टू मेंशन द जजमेंट्स टू गेट गुड मार्क्स। स्टडी में कौन से मिस्टेक्स किए थे?
यही मिस्टेक किया था कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था पर रिवाइज़ अच्छे से नहीं किया था। दिस टाइम मैंने कम पढ़ के ज़्यादा रिवाइज़ किया, और जित कम रिसोर्सेस रखा पर उनको बहुत ही होलिस्टिकली प्रिपेयर किया। वो रिसोर्सेस में बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल्स डाले ताकि एग्जामिनर को लगे कि मुझे बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में पता है, और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया। मैंने एक्चुअली तमिलनाडु का बुक नहीं पढ़ा था फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। मैंने ज़्यादा फोकस किया था एनसीईआरटीज़ पे, बिकॉज मुझे लगा मेरे लिए वो इनफ है। बट आई हैव हर्ड कि तमिलनाडु बुक इज़ अ रियली नाइस वन, सो या दैट शुड बी इनफ। सो या पॉलिटी गया। सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड द सोसाइटी पार्ट फॉर GS1। तो उसके लिए अगेन मैंने ऐसे किया था कि हाँ, तो सोसाइटी के लिए हर टॉपिक मैंने 1-2 पेज में उसका अच्छा नोट्स बना लिया था। सो इफ़ द टॉपिक इज़ ऑन सेक्युलरिज्म, इफ़ द टॉपिक इज़ रीजनलिज्म, यू हैव टू राइट अ वेरी क्रिस्प डेफिनेशन पहले। उसके बाद द रीजंस क्यों ये हो रहा है, कुछ लाइक सॉल्यूशंस टू दिस, और कुछ रीसेंट हैपनिंग्स, उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। एंड ये सब आप जाके एग्जामिनेशन में यू कैन डील, अगर आपके पास 1-2 पेज का ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हो। हाँ, तो सोसाइटी में ये सब क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम लाइक टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी, हंगर, ये सब जो गवर्नेंस में आ जाते हैं, वहाँ पे ऑल्सो आई डिड द सेम थिंग। लाइक इफ द टॉपिक इज़ ऑन हंगर, then आपको you should know the schemes that the government is pushing for, and at the same time you should also remember some keywords like आप hidden hunger या protein hunger, ये सब आप ज़रूर ऐसे सब keywords you can try to incorporate in your answers. If the question is on women labor force participation, why it is not like rising, तो वहाँ पे आप ये सब कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं थोड़े डिफरेंट, लाइक मॉमी ट्रैक, सेकेंड शिफ्ट, जेंडर वेज गैप, पेट्रियार्कल कंडीशनिंग। तो ये सब कीवर्ड से आपको डेफिनेटली हेल्पफुल ये सब आपके लिए होगा। हिंदी मीडियम में भी इंटरव्यू लेके आए। I will try. Even I'll also do it for the Odia medium people. Just give me some time. या तो ऐसे आप सब ऐसे कर सकते हैं। इवन फॉर चिल्ड्रन के भी आप विमेन एंड चाइल्ड में आप ऐसा कर लीजिए कि चाइल्ड मैरिज का ऐसे 2 पेजेस में आपने सारे इश्यूज कवर किए। चाइल्ड मैरिज हो गया, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया। चाइल्ड लेबर पे आपके पास एक्सीलेंट स्टैट्स होना चाहिए। चाइल्ड अब्यूज़ हो गया कि NCRB states that 1 in 4 children they are vulnerable to abuse। तो ऐसे आप कर सकते हैं। रीजंस में आप लिख सकते हैं कि जो भी 90% रिपोर्ट होते हैं वो उनके नॉन मेंबर्स से ही होते हैं। तो ये सब आप थोड़े डेटा इंक्लूड करिए ये सब टॉपिक्स में सोसाइटी में। जैसे अगर क्वेश्चन इज़ ऑन अर्बनाइजेशन, तो what I used to do was issues of urbanization में the main issue is the urban sprawl। तो दिल्ली में या मुंबई में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो भी स्लम्स है, आप कोई एक स्लम का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इतने किलोमीटर्स में इतने सारे लोग हैं। सो दैट रियली रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ अर्बन एरियाज़। अगर अर्बन क्राइम्स के बारे में लिख रहे हैं तो NCRB का कोई रिपोर्ट डाल दीजिए। अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है तो वहाँ पे आप कुछ लिख लीजिए कि सच्चार कमेटी रिपोर्ट स्टेट्स दिस। तो ये सब थोड़ा ऐसे कीजिए कि वॉट एवर सब हेडिंग्स यूर राइटिंग, तो वहाँ पे आप जो भी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, जस्ट डोंट राइट इट फॉर द सेक ऑफ इट। आप वहाँ पे कोई कमेटी रिपोर्ट डाल दीजिए, कोई डेटा डाल दीजिए, सो वो आंसर अच्छा दिखने लगता है। या सो गवर्नेंस गया। Definitely focus on maternal health, definitely focus on the healthcare, the poverty,
द एजुकेशनल सिस्टम्स, कोई कृष्णमाचारी कमेटी का कुछ रिपोर्ट्स आपने लिख लिया, कोई हेल्थ का भी बजट में बढ़ गया है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि बजट के हिसाब से अभी हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और हम 2025 तक कितना परसेंट करने की एम रखते हैं, तो वो सब आप ज़रूर लिखिए. कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए माई सोर्स वाज जस्ट न्यूज़पेपर्स. पर न्यूज़पेपर्स में आप ये देखिए कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जयशंकर जी, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, और वो यू कैन incorporate in your answers, and that's what I did. I made a note of the recent happenings in international arena, एंड उसमें फिर क्या क्या कौन कौन बोला है तो वो कर लेती थी. और जो भी कंट्रीज इन न्यूज़, उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या हिस्टोरिकल रिलेशंस था, क्यों, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो आप ज़रूर लिखिए. एंड एट द सेम टाइम एंड विद अ वेरी क्रिस्प कंक्लूजन कि ऑल्दो ये हो रहा है बट वी आर होपफुल कि ऐसे रिलेशंस विल बी फॉर द बेटर और समथिंग, ऐसे आप लिख सकते हैं. जैसे हमारे टाइम में एक क्वेश्चन था अबाउट श्रीलंका, उनका जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहा था, सो वो सब में आप ज़रूर कुछ डेटा भी डाल दीजिए कि उनका इतना था पर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, तो वो वैसे भी आप थोड़े इंटरलिंक कर सकते हैं विथ इकोनॉमी. एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो राइट कि श्रीलंका का हिस्टोरिकल रिलेशंस इंडिया के साथ ऐसा था और ये ऐसे ऐसे वो होता गया. और ऑलवेज राइट अ वेरी क्रिस्प वे फॉरवर्ड इन द एंड, क्योंकि दैट shows that you really know how to solve an issue and you're not just writing this issues. सो वो एक कीजिए. मैं काफ़ी बैलेंस करके लिखती थी आंसर. सो इफ़ आई एम मैंशनिंग, if the question is on positives of a certain thing, तो मैं if I'm writing about 6-7 points for positives, in the end I would write 2-3 points of the negative so that the answer looks more balanced. मैंने द हिंदू पढ़ा था न्यूज़पेपर, एंड आई ऑल्सो फॉलोड विजन का मंथली मैगजीन. ऐसे का मैं आ रही हूँ. दिस इज़ फॉर GS2. नाउ I'll yeah, another thing I would like to mention is कि जो भी न्यू एजेंसीज आर इन न्यूज़, क्वाड, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ऑकस, तो उसमें आप थोड़े लाइक अच्छे स्टेटमेंट्स डालिए. जैसे कि इफ़ लाइक क्वाड इज़ कॉल्ड द मार्शल प्लान, तो वो सब आप थोड़े इंक्लूड कीजिए अपने आंसर्स में. इट विल लुक रियली नाइस. सो कमिंग टू GS3 में इकोनॉमी वॉज माई ऑप्शनल, तो मैंने इतना नहीं पढ़ा था. बट वॉट यू कैन डू इज़, इकोनॉमिक्स तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए एक टेस्ट सीरीज़, नहीं तो नहीं होगा, बिकॉज यू विल एंड अप राइटिंग आंसर्स इन मोर देन द टाइम दैट इज़ गिवन फॉर एन आंसर. जैसे मैं जब पहले स्टार्ट की थी, मैं 3 आवर्स से काफ़ी एक्सीड कर जाती थी, बट विथ रेगुलर राइटिंग आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स के पहले यू आर एबल टू राइट 20 आंसर्स इन दोज 3 आवर्स. तो या डेफिनेटली प्रैक्टिस इज़ वेरी मच एसेंशियल. Yeah, so for economy what you can do is कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो भी अच्छे डेटा पॉइंट्स हैं, जो भी अच्छे कीवर्ड्स हैं, वो यू कैन यूज़ लाइक द थालीनॉमिक्स, और some nice data like the one I mentioned for healthcare. Definitely try incorporating those. For other topics like science and technology, for disaster management, I used the newspapers. Newspapers and the monthly magazines were just my sources. For disaster management, what I would say is कि for all these kind of disasters, like for cyclones, for tsunamis, for earthquakes, have 2-3 page notes for every disaster, and then try to mention some keywords, nice keywords like I don't really remember that, but एक कुछ था एम्फिबियन बिल्डिंग्स और समथिंग, वो आप
डिज़ास्टर प्रोन होते हैं. यू कैन ऑल्सो मेंशन कि सेंडाई फ्रेमवर्क ऐसे बोला गया है, सेंडाई फ्रेमवर्क, एनडीएमए के ये पॉलिसीज़ है. तो ये सब आप थोड़े कीवर्ड्स ज़रूर डालें. और एट द सेम टाइम जो कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इनिशिएटिव्स, तो वो भी आप कहीं कहीं पे कोट कर सकते हैं कि इंडिया ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहा है फॉर डिज़ाइनिंग डिज़ास्टर रेजिलिएंट प्लेटफॉर्म, डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो आप करिए. मैंने घर से ही प्रिपेयर किया था, पर मैं दिल्ली 2 months बिफोर मेंस गई थी, सो दैट मैं सेंटर में जाके आंसर्स लिख सकती हूँ. सिक्योरिटी में अगेन, सिक्योरिटी में मैंने एक कोचिंग सेंटर का बुक उठाया था और सारे जो भी टॉपिक्स है वहीं से ही प्रिपेयर किया था. पर सिक्योरिटी में एक चीज़ व्हाट यू कैन डू इज़ कि सोशल मीडिया का जो भी टॉपिक है वहाँ पे यू कैन मेंशन सम रीसेंट हैपनिंग्स, सम नाइस करंट अफेयर्स का एग्जांपल्स. एट द सेम टाइम अगर कोई स्पैम, कोई मैलवेयर इज़ इन न्यूज़, तो आपको उसके नाम पता होने चाहिए सो दैट आप आंसर्स में एक दो डाल सकते हो. For border related issues, just I would say just prepare a mind map of the of India and its borders. And आपको पता होना चाहिए कि ये बॉर्डर को गार्ड ये एजेंसी करता है. तो वैसे आप यू कैन जस्ट मेंशन अ मैप इन द आंसर एंड यू कैन कम. सो नैक्सलिज्म में भी वही था कि नैक्सलिज्म में भी मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया था और रेड कॉरिडोर ड्रॉ कर दिया था. एंड एट द सेम टाइम नैक्सलिज्म में ये भी है कि जब सोल्यूशंस आप दे रहे हैं कि कोई एनजीओज़ का के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो वो एनजीओ का नाम लिख लीजिए. जैसे उड़ीसा में देयर इज़ दिस एनजीओ कॉल्ड पीस प्रोसेस, तो वो मैंने मेंशन किया था. रिहैबिलिटेशन स्कीम्स जो है तो वो कुछ नाम आपको मेंशन होने चाहिए. समाधान स्ट्रेटजी जो इंडिया का है वो आप मेंशन कीजिए. आप जब सोल्यूशंस लिख रहे हैं तो उसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए कि कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स है, कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर्स है. सिक्योरिटी में आपका बॉर्डर फोर्सेस चला गया. डेवलपमेंट में किया हम आप उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे सो दैट वो नक्सलिज्म में ना जाए. हेल्थ बढ़ाए, एजुकेशन बढ़ाए, तो वो सब आप थोड़े मतलब सेपरेटली यू कैन मेंशन. कमिंग टू एथिक्स, एथिक्स प्रेपरेशन एक्चुअली आपको इतना आपको वहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग स्कोरिंग पेपर्स. तो उसका भी मैंने इंटरनेट से भी जो भी मुझे मिला था वो मैंने कर लिए थे अच्छे से. एंड टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा था. जैसे अगर टॉपिक है इंटेग्रिटी, सो यू शुड नो 2-3 कोट्स रिलेटेड टू इंटेग्रिटी जो आप पहले मेंशन कर सकते हो. यू शुड नो 2-3 एग्जाम्पल्स, एंड वो डाइवर्स एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं. यू कैन गिव वन फ्रॉम स्पोर्ट्स, यू कैन गिव वन फ्रॉम कॉर्पोरेट, यू कैन गिव वन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज. तो ऐसे आप सब कर सकते हैं. इंटेग्रिटी में वो आप कुछ कोट्स जो आते हैं, आई डोंट रियली रिमेंबर वो कोट्स, लेकिन वो कोट्स के साथ आप ज़रूर कंक्लूजन वो कर सकते हैं. यू कैन एंड द आंसर विथ अ नाइस कोट. सो दैट रियली हेल्प्स इन एथिक्स. एथिक्स में आप थोड़े डायग्राम्स भी बनाने की कोशिश कीजिए. आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज नोट्स ऑन माई ब्लॉग सून, सो यू कैन गेट एन ओवरऑल आइडिया. बट एथिक्स का आंसर्स मैं ऐसा लिखती थी कि इट शुड स्टार्ट विथ अ वेरी इफेक्टिव डेफिनेशन और अ कोट और अ नाइस एग्जाम्पल. एंड अगर क्वेश्चन है कि इंटेग्रिटी हमेशा अच्छी होती है या नहीं, तो आप पहले लिखिए कि क्यों ये इतना अच्छा, क्यों इंटेग्रिटी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. तो उसमें फॉर ऑल द पॉइंट्स जस्ट मेंशन वेरी नाइस एग्जाम्पल्स. और फिर लास्ट में यू कैन राइट कि वाई इंटेग्रिटी इज़ नॉट ऑलवेज अप्रिशिएटेड. तो वहाँ पे आप फिर 2-3 पॉइंट से वो बैलेंस कर दीजिए आंसर को, एंड एंड द आंसर with a very nice quote. So that is how your ethics answer should look like. For case studies, what I would say
इज़ आप कुछ टॉपर्स आंसर कॉपीज़ देख लीजिए, जैसे फोरम आइस, विजन आइस, दे अपलोड ऑल दीज टॉपर्स आंसर कॉपीज़, तो वो सब आप ज़रूर देखिए. आई यूज टू रेफर टू Soumya Sharma ma'am's answer copies. They were really good. And at the same time, you can also refer to Vishakha Yadav ma'am's answer copies. They will give you an overall idea of how to approach case studies. That's what I did. और केस स्टडीज़ में भी आप जब लास्ट में एंड कर रहे हो, तो मेंशन keywords like trusteeship, compassionate capitalism. So these really help you write a good ethics answer. So many people have been asking me about my essay strategy. Uh, for essay, I did not really prepare separately, but what I did, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, सो आई वुड प्रेफर टू टेक अ like a separate session for economics optional, because अभी I think mostly GS people are live, so yeah. तो ऐसे के लिए मैंने क्या किया था कि जो भी मैंने जीएस में पढ़े हैं, उनको मैंने एक अच्छा पैटर्न में कैसे ऐसे लिखते हैं, वो उस हिसाब से आई हैड डिवाइज्ड ए स्ट्रैटेजी. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि क्योंकि एसेज इतने फिलोसफिकल होते हैं, यू हैव टू लाइक नो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी एबल टू राइट दैट essay. So if the question is about, just say, I remember writing an essay on conversation enriches understanding, but solitude is the ultimate genius. So conversation enriches understanding. Now आप इसमें थोड़ा शायद आपका दिमाग ना चले कि how do I approach this essay. So you can start thinking GS wise. Like अगर आप GS में देखें तो हिस्ट्री आपका पहला आएगा, राइट, GS1. तो हिस्ट्री में आप देखिए कि क्या ऐसे कॉन्वर्सेशंस किनके साथ हुए थे. सो अकबर यूज टू कंडक्ट दीज गैदरिंग्स, जहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स आते थे और ऐसे डिस्कशंस होते थे. तो उस हिसाब से कैसे वो ही यूज टू बी अ वेरी सेक्युलर लीडर, और कैसे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ा. तो ये आप कर सकते हैं. फिर यू कैन कम टू पॉलिटी. आप इस हिसाब से यू कैन थिंक कि पॉलिटी, फिर पॉलिटी में जो भी जो भी आपका डिस्कशंस हुआ था व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड, तो वो भी एक कॉन्वर्सेशन ही था, राइट, अमंग द पीपल. तो वो कॉन्वर्सेशन कैसे रिजल्ट हुआ इन द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विच इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो मैंने एक एग्जाम्पल अच्छे से लिखा था. और ऐसे डाइवर्स आप जीएस के तरीके से भी लिख सकते हैं. कोई मैसेच्यूसेट्स मीटिंग का लिख लिया, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का लिख लिया. तो मेरा conversation enriches understanding, I am actually covering from all aspects. So that is how I used to write an essay. और फिर लास्ट को फिर बैलेंस किया कि नहीं, कॉन्वर्सेशन हमेशा भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज समटाइम्स रिलेटिव्स आपको कुछ बोल देते हैं एंड देन इट टेक्स ए डेंट ऑन योर मेंटल हेल्थ. सो समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बैकफायर. तो वैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिख के मैंने बैलेंस किया था. सॉलिट्यूड इज़ द अल्टीमेट जीनियस के हिसाब से फिर मैंने वो भी लिखा था कि जो भी आप एग्जाम्पल गौतम बुद्धा का दे सकते हैं कि हाउ ही मेडिटेटेड फॉर अ गुड नंबर ऑफ डेज टू अल्टीमेटली अचीव एनलाइटनमेंट. सो ये सब आप करके यू कैन राइट एन ओवरऑल ऐसे, अच्छा ऐसे, एंड एंड इट विद अ nice conclusion that conversations should lead the way forward, but ऐसा conversation जहाँ पे कि the other person is getting affected, it should not be the way forward. तो ऐसा कुछ लिख के आप ऐसे को end कीजिए. So yeah, this is all I would say about the essay strategy. डेली आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म मैंने डेली आंसर राइटिंग नहीं किया था. मैंने बस मेंस के पहले आंसर राइटिंग किया था, और वो भी प्रॉपर पेपर्स जो भी 20 क्वेश्चंस होते हैं वही किया था. एंड फॉर दैट आई यूज्ड फोरम आइस का जो MGP प्रोग्राम है, आई हैड एनरोल्ड इन दैट. सो यू कैन फाइंड माई आंसर कॉपीज ऑन देयर प्लेटफॉर्म एज वेल.
सो कमिंग टू द टाइम टेबल, ऐसा कुछ टाइम टेबल नहीं है, बिकॉज मैनी एस्पिरेंट्स मस्ट बी वर्किंग, मैनी एस्पिरेंट्स मस्ट नॉट बी वर्किंग. सो इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, देन आप जितना भी टाइम है आप जितना भी टाइम आप थोड़ा लेजर का या थोड़ा एंटरटेनमेंट का अलग रख के आप जितना भी टाइम पा रहे हैं पढ़ लीजिए अच्छे से. For working aspirants, again, whatever time that is left after your job or your studies, you can devote. जैसे when I was taking mains and interview, I was enrolled in MPhil in Economic Research of University of Cambridge. So I had to juggle between a lot of things. And जो भी मुझे टाइम मिलता था मैं स्मार्ट वर्क करके कि सारी चीज़ें नहीं पढ़ने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने हैं और वो चीज़ों को बहुत ही होलिस्टिकली कवर करने हैं. जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ अबाउट दिस फेक न्यूज़ या अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने अच्छे हैं या ख़राब है, तो मैं उनके वो जो जनरल पॉइंट्स हैं उसके साथ साथ मैं बहुत अच्छे अच्छे उनके एग्जाम्पल ज़रूर लिखती थी. तो वैसे मैं पढ़ती थी ताकि मेरी मेमोरी पे ज़्यादा रिटेन हो जाए. तो आप हर चीज़ को इतने हरी में कंप्लीट करने की वो मत कीजिए. हरी में कंप्लीट करने का आपका एम नहीं है. आप एक टॉपिक को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं प्रिपेयर, उस पे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए. दैट इफ़ आई हैव कंप्लीटेड ज्योग्राफी, I know almost everything that is mentioned in the syllabus. That's what should be your aim. Uh, Many people do ask me about a plan B. I did have a plan B because in the first two attempts I had not been able to clear. So what I did was मैंने सोचा था कि मैं एकेडेमिया में चली जाऊंगी if UPSC doesn't work out, but fate had different plans. So मैं बोलूँगी कि आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स आप ज़रूर देखिए कि आपके अगर आप चाहते हैं टू लुक फॉर अ प्लान बी तो आप डेफिनेटली देखिए, क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स के बाद आपको मोर और लेस पता होता है कि क्या क्या करने हैं. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू चैनलाइज योर एनर्जीज इनटू द राइट सेट ऑफ बुक्स और द राइट सेट ऑफ स्ट्रेटजी. मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए. हर बुक पढ़ने की कोशिश ना करें. एक ही बुक को आप कितने अच्छे से और कितने टाइम्स रिवीजन कर पा रहे हैं, उसी से आपका सारा डिफरेंस मेक होगा. दैट्स व्हाट आई फील. सो कमिंग टू अनदर दिस वन विच इज़ द इंटरव्यू. इसको मैं बहुत ही ब्रीफली कर लेती हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड 1 hour. सो interview is the most like exciting phase of the entire journey of UPSC. But interview में ऐसा है कि you just need to prepare 2 things, which is your detailed application form and what is going on around you. You should be aware. So वो मैंने भी किया था कि डैफ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था. जो भी आप इंटरेस्ट हॉबीज़ मेंशन कर रहे हैं, जो भी आपने कहाँ पे वर्क किया है, कहाँ पे स्टडी किया है, कहाँ पे आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उनको बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड वे में आप उसको कवर कर लीजिए. एंड एट द सेम टाइम अगर इफ़ यू आर बॉर्न इन लाइक आई वाज बॉर्न इन ओडिशा एंड ओडिशा में कुछ मेजर हैपनिंग है, तो उसके बारे में आप अच्छे से आपका लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम आपने उन टॉपिक को इतना अच्छे से एनालाइज किया होगा कि इंटरव्यू पैनल आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप अच्छे से उसको एड्रेस कर सकते हो. तो वो मैंने किया था. एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी अबाउट माई मेन स्ट्रेटजी. सो या मेंस के लिए उतना ही है जितना मैंने बोला, उतना आई डिड. लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल refer to a lot other books, but this is what I did. मैं बोलूँगी कि रिवाइज़ कीजिए. अब पहले से आंसर राइटिंग मत चालू कीजिए. ओनली आफ्टर you have had certain information about a topic, then only go for answer writing, and that will definitely help you. I would say कि आप अगर
आप अगर आर्ट एंड कल्चर के टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए कि दीज आर द पेंटिंग्स इन दीज पार्ट्स ऑफ इंडिया, दीज आर द पेंटिंग्स, दीज आर द टेम्पल आर्किटेक्चर। सो दैट आप जो आंसर लिखेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट वो थॉट प्रोसेस आपका हर टेस्ट में और एग्ज़ाम में भी चलेगा। सो आप ऐसे ही कुछ भी आंसर लिखने से बेटर है कि आप प्रिपेयर्ड आंसर्स लिख के आए एग्ज़ाम में। बट एट द सेम टाइम ये भी मत सोचिए कि आप 15 दिन पहले एग्ज़ाम्स के आपको लग रहा है प्रिपेयर है तो तब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। नहीं, जब आपको आपको लगेगा कि 80% यू हैव कवर्ड, देन यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। ऑप्शनल तो डिफ़र करता है। मेरा इकोनॉमिक्स था तो मैं कैसे मतलब हाउ डू आई एड्रेस ऑप्शनल कैसे करूँ, क्योंकि अगेन इट विल टेक 1 आवर टू कंप्लीट दैट। बट व्हाट आई वुड से कि ऑप्शनल को आप साइड बाय साइड जीएस के कीजिए। और ऑप्शनल के लिए जो मेन स्ट्रेटजी होता है कि वो पास्ट ईयर्स आप सॉल्व कर लीजिए। पास्ट ईयर्स करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड, एंड इफ़ यू हैव सॉल्व्ड पास्ट ईयर्स इन डिटेल you will be able to attempt at least 6-7 questions directly in the examination. Rest all you will have to again study, revise, study, revision and practice. I would say that should be enough for mains. Baki, I'll try to take a session again for optional students if I keep getting questions. But yeah, I think that's it for today. एंड प्लीज़ न्यूज़पेपर्स डेफिनेटली पढ़े, नोट्स बनाए। नोट्स डोंट मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स बट डेफिनेटली मेक नोट्स फॉर मेंस। इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड बी एबल टू मेक दोज 1-2 पेजेस का नोट्स which you will ultimately revise before the examinations. Yeah. So I think that's it. Thank you so much everybody for joining. It was a lovely session interacting with you all. I'm really sorry if I have not been able to address a lot of questions by the aspirants. I actually try to stay active on Instagram and I try to answer the questions that the aspirants are asking. That is the only way you can connect with me. I'm actually working on my blog, which I'll make live soon. But till then, you can ask me all your doubts on Instagram. I'll try to address. In terms of guidance, be assured that jitna ho sake, I'll try to be there. And yeah, thank you so much. Thank you so much everybody for joining. I hope to see you soon in another live session, and thank you.